ہم نے یہ سفر ایک مشکل مقام سے شروع کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں موجودہ حکومت نے انتھک محنت سے حالات پر قابو پایا ہے اور کئی اہم اور دور رس نتائج کی حامل معاشی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ مالی سال میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امریکہ ایران جنگ کے باوجود ہماری معاشی شرح نمو 3.7% تک پہنچ چکی ہے۔ قومی اسمبلی میں 18,771 ارب روپے مالیت کا بجٹ پیش۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ پیش کیا۔ دفاعی بجٹ 3,000 ارب روپے مقرر، سول انتظامات چلانے کے لیے 1,071 ارب روپے مختص، اخراجات کا تخمینہ 17,495 روپے تجویز، قومی ترقیاتی پروگرام کے لیے 3,675 ارب روپے مختص، وفاق کا 1,000 روپے، صوبوں کا 2,224 ارب روپے کا ترقیاتی پروگرام، جاری اخراجات سے آزاد کشمیر کے لیے 146 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 88 ارب روپے دیے جائیں گے، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 95 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، محصولات کا ہدف 15,267 ارب روپے مقرر، شرح نمو کا ہدف 4% برقرار، مہنگائی کی اوسط شرح 8.2% رہنے کا تخمینہ، قرضوں پر 100 ادائیگیوں پر 8,054 ارب خرچ ہوں گے، پینشن کی مد میں 1,169 ارب روپے مختص، سبسڈی کے لیے 1,000 کا 7.8% تھا، موجودہ مالی سال کے اختتام میں یہ 4% تک آ جائے گا۔ 2 سال قبل ہماری پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے 0.7% کے برابر اخراجات درپیش تھا۔ موجودہ مالی سال میں ہم پرائمری بیلنس کو 1.6% کے سرپلس تک لے آئے ہیں۔ اس طرح پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے حساب سے 2.3% کی بہتری آئی ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں پینشن میں 7% اضافہ، کم سے کم تنخواہ میں 10% اضافے کی تجویز، تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف کا اعلان، عائد 9% سرچارج بھی ختم کرنے کی تجویز، آمدنی کے 4 سلیبس کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف کی تجویز، سالانہ 22 سے 32 لاکھ روپے والوں کے لیے شرح 23 سے کم کر کے 20% کر دی گئی، 32 سے 40 لاکھ سالانہ کمانے والوں کے لیے انکم ٹیکس 25%، 41 سے 56 لاکھ سالانہ آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح 29%، 56 سے 70 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر 32% کرنے کی تجویز، حکومت کا 15 سے 50 کروڑ روپے تک آمدنی کے 6 سلیبس پر سپر ٹیکس مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ، 50 کروڑ سے زائد آمدنی پر سپر ٹیکس کی شرح 10 سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز، بینکوں، تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنیز اور فرٹیلائزرز پر سرچارج برقرار رہے گا۔ بجٹ میں چھوٹے دکانداروں پر فکسڈ ٹیکس عائد کرنے کی تجویز، سالانہ کروڑ روپے یا اس سے کم سیل پر دکاندار 1% ٹیکس ادا کریں گے، فائلرز کے لیے جائیداد کی خرید و فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی، فائلر کے لیے جائیداد کی فروخت پر ٹیکس 5.5% سے کم کر کے 2.75% کرنے کی تجویز، فائلر کے لیے جائیداد کی خریداری پر ٹیکس 2.5 سے کم کر کے 1.25% کرنے کی تجویز۔ بجٹ میں برآمدی شعبے کے لیے ریلیف کا اعلان، 100 سے زائد اقسام کے خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی ختم، الیکٹرک موٹر سائیکل، رکشوں، گاڑیوں، بسوں پر موجودہ رعایت برقرار، درآمد الیکٹرک ٹرکوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 1% کم ہوگی۔ وزیراعظم اپنا گھر اسکیم کے لیے 71 ارب روپے مختص، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 838 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، کفالت پروگرام کو 1.20 کروڑ خاندانوں تک بڑھایا جائے گا، غریب اور سیلاب متاثرہ خاندانوں کی بحالی پروگرام کے لیے 500 ملین روپے مختص، بیت المال کے لیے 10 ارب روپے، لائیو سٹاک انشورنس اسکیم کے لیے 700 ملین روپے اور فصل قرض انشورنس اسکیم کے لیے 1 ارب روپے مختص، اعلیٰ تعلیم کمیشن کے لیے 65 ارب روپے، ای پی آئی پروگرام کے لیے 500 ملین روپے مختص، کینسر اور دیگر بیماریوں کے ادویات کی مقامی تیاری پر عائد ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ۔ ہماری مسلح افواج نے دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ چند ہی گھنٹوں میں امن کی بات کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ کامیابی دہائیوں کی پیشورانہ تربیت اور تیاری کی نتیجہ تھی۔ آج دنیا پاکستانی دفاعی قوت کی معترف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری فضاؤں کا تحفظ کرنے والے فائٹر جیٹس کو کئی ممالک اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کے لیے پاکستان سے رابطے میں ہیں۔ دنیا پاکستان کی دفاعی قوت کی معترف ہے۔ مسلح افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہمارے فائٹر جیٹس کو کئی ممالک اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کے لیے رابطہ کر رہے ہیں۔
दिफाई सनत ज़र मुबादला कमाने का जरिया बन चुकी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहदे की वजह से ताल्लुकात को मुस्तहकम और नई बुनियाद मिली है। हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। ताल्लुकात में तब्दीली सिविल और अस्करी क़यादत की बदौलत है। अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जरिए अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर लाने में कामयाब हुए। कोशिशें मुआहदा कामयाब हो। आबना हुर्मुज़ से तेल की फरहमी बहाल हो। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का पूरा बोझ अवाम पर नहीं डाला। पाकिस्तान में ईंधन की कोई किल्लत पैदा नहीं होने दी गई। पाक चीन ताल्लुकात दो हुकूमतों का नहीं, अवाम के दिलों से जुड़ा रिश्ता है। जो टैक्स पेयर इस ऑफर को कबूल करेगा, अपने गोशवारा दुरुस्त कर लेगा और सेटलमेंट की रकम जमा करा देगा। हमारी मुसल्लह अफराज ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो चंद ही घंटों में अमन की बात करने पर मजबूर हुआ। हमने ये सफर एक मुश्किल मकाम से शुरू किया। वजीर आजम पाकिस्तान की क़यादत में ऑपोजिशन अराकीन का बजट तकरीर के दौरान शोर शराबा, पोस्टर और प्ले कार्ड ईवान में ले आए। सीटों से खड़े होकर एहतजाज, शदीद नारेबाजी, बजट दस्तावेजात फाड़ कर वजीर खजाना पर फेंक दी। मुल्क की और फिर IMF की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक हमें टैक्सेस लगाना पड़े ताकि जो मईशत माजी के कई सालों पर मुहित जो हचकोले खा रही थी उसको स्टेबल किया जाए और मुल्क के जो तरक्की के रास्ते जो हैं उनको कुशादा किया जाए। यकीनन उससे आम आदमी को मुश्किलात पेश आई, बड़ी तकलीफ आई और मैं समझता हूँ कि मैं अपनी तरफ से और पूरी काबीना की तरफ से पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल से जो एक महंगाई थी उसको बर्दाश्त किया। वफाकी काबीना ने बजट की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने बजट दस्तावेजात पर दस्तखत किए। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, ये रिलीफ और अवामी फलाह का बजट है। वादा किया था मौशी इस्तेकाम के समरात बराह रास्त आम आदमी तक पहुँचाएंगे। अब खुशहाली का वक्त शुरू हो चुका। पाकिस्तान के हर शहरी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। बजट के बाद मईशत का पहिया तेजी से घूमना शुरू कर देगा। तमाम तर मौशी चैलेंजेस के बावजूद बेहतर बजट पेश करने की कोशिश की है। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आई। खलीज की सूरत हाल से इसमें थोड़ा इजाफा हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत से नाराज। बजट इजलास में शिरकत न करने के फैसले पर हुकूमती वफ्द बिलावल भुट्टो को मनाने उनके चैम्बर में पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कायल नहीं कर सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मिशन में कामयाब। बिलावल भुट्टो को मनाकर ईवान में ले आए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारा मैंडेट चोरी करने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ मैंडेट चोरी हो और मैं तालियां बजाता रहूं। कि सूबे के NFC और शेयर को कम करे और वफाक को मजीद पैसे दे दे और सारे मसले हल हो जाएंगे। ना कोई गौर किया जाता है रेवेन्यू जनरेशन की तरफ। अगर FBR किसी एक सूबा ना सूबा सिंध का रेवेन्यू बोर्ड का मुकाबला कर सकता है, ना बलूचिस्तान का रेवेन्यू बोर्ड से मुकाबला कर सकता है, ना पंजाब और KP का रेवेन्यू बोर्ड का मुकाबला कर सकता है, तो इससे बेहतर है कि वो बंद हो जाए। FBR चारों सूबों की आमदन का मुकाबला नहीं कर सकता। बेहतर है FBR बंद हो जाए और इख्तियारात सूबाई रेवेन्यू बोर्ड्स को दे दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। बोले, कहा जाता है कि NFC अवार्ड में सूबे का हिस्सा कम करके विफाक को दे दिया जाए। हुकूमत की जानिब से आमदन बढ़ाने पर काम नहीं किया जाता। सिंध बलूचिस्तान का विफाक से मुआहिदा हुआ है। 3 साल हम विफाक के साथ हिस्सा डालेंगे और तब तक NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, तमाम जमातें विफाक और सूबे मिलकर आईनी बाहमी मुशावरत पर मबनी हल निकालें। FBR समेत तमाम रेवेन्यू इदारों की इस्लाह की जाए। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के साथ कौमी जरूरियात भी पूरी की जाए। पॉजिटिव चीज़ जो नज़र आ रही है कि उन्होंने कहा कि एक्सपोर्टर्स को जो रिफंड्स हैं उसको स्पीड अप किया जाएगा। 4.5% एक्सपोर्ट रिफाइनेंस का उन्होंने रेट मुकर्रर किया है जो एक्सपोर्टर्स के लिए
एक पॉजिटिव खबर है, बिजली की सब्सिडी के अंदर 1050 बिलियन रुपीस रखे हैं, जिससे तवक्को की जा रही है कि वो इंडस्ट्रीज के लिए बिजली की प्राइसेस को कम करेंगे। सुपर टैक्स की जो रिलीफ है ये एक अच्छा खुश आइंद है एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि एक बड़ा बर्डन था, और जो रिटेलर पे 25,000 रुपये फिक्स कर दिया है ये भी इजी है मेरे ख्याल से टैक्स पेइंग के लिए। मुझे उम्मीद है कि जो हमारी जो टैक्स बेस है वो बढ़ेगी। इस वक्त हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 11% है, जो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमारे हमसाया ममालिक में 17% है, तो इसमें कोई बेहतरी आएगी। ताजरों और सनतकारों का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। सुपर टैक्स की शरह में कमी और छोटे ताजरों के लिए फिक्स्ड टैक्स को खुश आइन करार दिया। कहा टैक्सों में कमी करके अवाम और कारोबारी शोबे के लिए मजीद रिलीफ दिया जा सकता था। तरक्याती फंड और आला तालीम के लिए फंड में इजाफा भी खुश आइन करार दिया। कदम बढ़ाएं, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को दावत दे दी। वजीर आजम ने एक बयान में कहा, नून लीग ऑपोजिशन में बैठेगी लेकिन पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आए। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत करते हैं। फैसला जमहूरी रिवायात और इक़दार को मुकद्दम रखते हुए किया है। नून लीग ने हमेशा हलीफ जमातों के साथ इज्जत और एहतराम का रिश्ता बरकरार रखा। पंजाब में मुफ्त सफरी सहूलत खत्म। कल से मेट्रो बसों ऑरेंज लाइन में किराए की वसूली शुरू हो गई। पेट्रोल महंगा होने के बाद लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस फ्री की गई थी। विफाकी आईनी अदालत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस समाअत के लिए मुकर्रर। वजीर आजम और काबीना पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 जून को समाअत करेगा। वजीर आजम और काबीना के खिलाफ कार्रवाई का फैसला विफाकी हुकूमत ने चैलेंज कर रखा है। बादलों ने सूरज की तपिश कम कर दी। दिन भर हवाएं चलती रही। लाहौर का मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, उकाड़ा, मियांवाली में मूसलाधार बारिश। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में आंधी और बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार।